Good evening, students. Now, today we are going to discuss about the topic force and laws of motion, lecture number 4. Let me discuss what point to be covered in today's topic. We have to cover today conservation laws of linear momentum. Linear momentum, you know very well. What is the linear momentum? Linear momentum is the product of mass and velocity. Conservation law. Conservation means it will remain the same. Before collision and after collision, momentum remains the same. That law we have to discuss. That is linear momentum. That is P. We are indicating with the letter product of mass and velocity. Before collision and after collision, momentum remains same. That is, you can say the momentum P1 minus or P1 plus P2 equals to 0, or P1 plus P2 plus P3 plus P4. Whatever the sum of momentum is a 0. Before collision and after collision, momentum will be the equal. Then some derivation and some application base of the linear momentum. How we are going to derive the laws of conservation of momentum, and it is basically the law of conservation of momentum is basically depends upon Newton's third laws of motion. What is Newton's third law? The force, every action there is equal and opposite reaction. Depending upon that law, its base. That derivation also we have to discuss. Collision. What is meant by the collision? What is collision? Collision means, yes, takrana. Very good. Collision means takrana. Very nice. The collision means when the objects are striking on the other objects. एक दूसरे पे क्या हो रहा है? Strike हो रहा है, टकरा रहा है. That is known as the collision. Here the two types of collisions are there. Which two types? Elastic collision and non-elastic collision. Okay, two types of collisions are there: elastic and non-elastic. That types of collision, elastic and non-elastic. When we are saying the elastic, in every collision momentum remains same. Momentum before collision and after collision momentum is conserved. But if the energy is also conserved, before collision and after collision the kinetic energy also going to conserve, then we can say this kind of momentum is known as the elastic collision. Non-elastic collision, the kinetic energy is different. Before collision and after collision, energy is not same. That is known as the non-elastic collision. Elastic collision means the type of collision. In that collision, before collision and after collision, momentum is conserved. First condition. Second condition, the before collision and after collision, kinetic energy also constant. The condition means the energy as well as momentum both are constant, both are conserved, is known as the elastic collision. In non-elastic collision, momentum is always conserved, no doubt. But second case, the kinetic energy is a little bit variations. Before collision and after collision, the kinetic energy is going to change. That is known as the non-elastic collision. Recalling gun. Gun is given the example. It is again the application of the law of conservation of momentum. When we are fire from the gun, might be you know very well, the gun is going to recoil. Means bullets are going in forward directions and gun is coming on backward directions. That is known as the recoiling a gun. Recoil होना यानी फिर से पीछे आना है ना? That is known as recoiling of gun. And the same way the bomb explosions and the rocket. When you are explosion of the bomb, the fragments of the bombs are moving in all the directions, all the random directions. The resultant momentum again the 0. And the rocket of same again. When the rocket is going upward directions, the velocity is upside and the downward velocity different side. In that case also momentum remains the same. That point we have to discuss now one by one. The law of conservation of momentum. क्या है law of conservation of momentum? क्या बताया मैंने तुम्हारे को? The momentum before collision and after collision momentum remains same. Constant का मतलब भी क्या है? Conserve का मतलब भी क्या है तुम्हारा? Same होता है ना? Let me discuss now the two objects are there. This is suppose object 1, object 2. Mass 1, mass 2 है ना? इसकी velocity suppose let v1 and इसकी velocity क्या है suppose v2. देखो type of collision है, टक्कर लगाने के तरीके भी देख लो, कब कब टक्कर लगती है ना? शायद पता होगा आपको. If both the objects are moving in the same direction, क्या हो रहा है अभी? If both the objects are moving in the same direction, तो टक्कर लगेगी क्या? लगेगी.
कब लगेगी? इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, तो टक्कर लगेगी, बराबर है कि नहीं? दोनों भी ऑब्जेक्ट जा रहे हैं आपके एक ही डायरेक्शन में, है ना? जब तुम्हारे पीछे के ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा हुई तो ही टक्कर लगेगी, नहीं तो टक्कर लगेगी नहीं लगेगी, है ना? अदरवाइज द अदर दूसरी अदर कंडीशन इज द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, v1 and v2, these two conditions are there of the collision, दो conditions है collision के, है ना? जब when the objects are moving in one direction only, एक ही जगह डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब भी आपको टक्कर लग सकती है, जब इतना ही है कि एक की वेलोसिटी क्या होना चाहिए आपकी दूसरे से ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो दोनों के वेलोसिटी में डिफरेंस होना चाहिए, दोनों के वेलोसिटी में क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए, तभी क्या हो गया तुम्हारा दोनों कोलाइड्स हो गए। अदरवाइज व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन डेफिनेटली दे विल कोलाइड्स, तो क्या होगा? दोनों भी क्या होगा? डेफिनेटली दे विल कोलाइड्स। तो इसका कहना क्या है? किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब पता है आपको? व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम? वी आर इंडिकेटिंग विद द लेटर पी, पी से दिखाते हैं ना अपन, क्या है? मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। देखिए अभी टक्कर मारने के पहले का थोड़ा सा इमेजिन करना है, यू हैव टू जस्ट इमेजिन बिफोर कोलिजन को टक्कर लगने के पहले, है ना? तो ये मास का मोमेंटम क्या था? ये मास का पहले का ऑब्जेक्ट का, ये समझो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। तो सबसे पहले मुझे बिफोर कोलिजन टक्कर नहीं लगी अभी, हाँ इमेजिन करो, इसका मोमेंटम कितना है? m1 v1, है ना? ये ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है? m2 v2। कितना है मोमेंटम? कितना है? वेलोसिटी कुछ है क्या? टक्कर बिफोर को टक्कर लगा जब नहीं, वेलोसिटी कुछ तो कुछ होगी, है ना? इसका मोमेंटम m1 और m2 है ना? तो अभी कभी कभी क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इनिशियल पहले स्टार्टिंग में तो जीरो था, रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना? वेलोसिटी जीरो है, और एक टक्कर लगने का चांस है, कौन सा? और एक कंडीशन है, एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस में है और यहाँ पे क्या है तुम्हारा v इक्वल टू कितना है? 0, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है तुम्हारा? आके इस पे टकरा रहा है ना? ये भी कंडीशन हो सकती है। कंडीशन कितने से टक्कर लगने के? 3 हो गए, है ना? एक तो क्या है? सेम डायरेक्शन व्हेन दे हैव द डिफरेंट वेलोसिटीज, ओके एक्चुअली दिस इज कंडीशन इंक्लूडिंग डिफरेंट वेलोसिटीज ओनली। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है? 0 है, चल रहा है नहीं, जगह पे रुका है, दूसरा ऑब्जेक्ट आके उसको टकरा रहा है, एंड हियर द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों भी क्या है? ऑब्जेक्ट तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या करते हैं जनरली? वी आर कंसिडरिंग द व्हेन द वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन, वी आर कंसिडरिंग द वेलोसिटी इज इन माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या है? इनिशियल मोमेंटम कितना है तुम्हारा? इसका मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। अभी क्या होगा? इक्वल्स टू, ये बिफोर कोलिजन है। अभी सपोज टक्कर लग गई, टक्कर लगने के बाद में क्या होगा? मास में चेंज होगा क्या m1 m2 के? नहीं होगा, है ना? मास इज रिमेन गोइंग टू द सेम बट वेलोसिटी इज गोइंग टू डिफर। तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी जो टक्कर पहला था पीछे का, इसकी ज्यादा थी स्पीड, तो इसकी स्पीड पहले सपोज लेट मी कंसीडर the velocity of the objects and this one is of, let me consider this is a velocity of the object, let अपने आसानी से कंसीडर करने से वेलोसिटी में कंसीडर करेंगे 40, इसकी वेलोसिटी क्या कंसीडर करेंगे अपन? 50, है ना? मास समझो m1 m2। तो जब टक्कर लग गई है दोनों की, जस्ट इमेजिन करो व्हेन आफ्टर कोलिजन, तो क्या इसकी वेलोसिटी 50 होगी? नहीं, इट विल बी रिड्यूस लेस देन 50, 50 से क्या होगी? कम होगी। और इसको धक्का मिलने के बाद में इसकी वेलोसिटी 40 होगी क्या बढ़ेगी? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इन दैट केस आल्सो द मोमेंटम इज रिमेन्स द सेम, समझा? तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी? कुछ तो कुछ हो रही है लेकिन कम हो रही है, कुछ तो कुछ हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, और इसकी वेलोसिटी कुछ तो भी ज्यादा हो रही है। तो ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम यानी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन m1। अभी वेलोसिटी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी में क्या करता हूँ? कंसीडर करने के लिए u लिखता हूँ, है ना? यहाँ क्या थी? वेलोसिटी क्या थी तुम्हारी? u थी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, टक्कर लगने के बाद में मास उतना ही है, पर वेलोसिटी क्या होगी? इसकी v1 होगी प्लस m2 v2। ये दोनों भी क्या है? आपके सेम है, समझे? हाँ, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी m1 v1 थी, m1 u2 थी। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी द मोमेंटम इज रिमेन्स द सेम। इन दैट केस, नेक्स्ट केस, ये केस देखो अभी, इसमें क्या हो रहा है? इसका मूवमेंट, इसकी वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी पहले, अभी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी सपोज v है। इनिशियल क्या थी? सपोज इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी क्या है? इनिशियल u1 है, सॉरी u2 है। इसका इनिशियल क्या है? u1 है। इसका इनिशियल क्या है?
u2 है, लेट मी कंसीडर इनिशियल इज u एंड v इज द फाइनल, इमेजिन करना है आपको। तो यहाँ पे भी क्या है, सपोज u1 और यहाँ पे u0 था, तो यहाँ पे कितना है, v कितना है तुम्हारा पता नहीं है, जो फाइनल v है सपोज। अभी सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में क्या है, बिफोर कोलिजन नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स, अभी क्या आ रहे आपके आसपास आ रहे, दे आर कमिंग क्लोजर नाउ। हियर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन, m1 u1, बराबर है। इसका मोमेंटम क्या है तुम्हारा m1 v1। अभी देखिए सेकंड का, अभी यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इसका मास कितना है m2, वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, वेरी गुड, माइनस लिखना पड़ेगा है ना, तो माइनस क्या है u2 इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे क्या होता है, कंडीशंस तुम्हारे डिपेंड्स करता है तुम्हारे मास पे, देन वेयर द ऑब्जेक्ट विल बी गो, द m1 क्या होगा, अभी m1 कभी कभी क्या होता है देखो, तो यहाँ पे हो सकता है m1 ये डायरेक्शन में जा रहा है, डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी कम होगी, इधर जा रहा है ना, तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी कम होगी, उधर से वो डायरेक्शन में आ रहा है उसकी भी वेलोसिटी कम होगी, दोनों की इसमें वेलोसिटी कम हो रही है ना, पर रिजल्टेंट मोमेंटम क्या है तुम्हारा उसमें हमेशा सेम आ रहा है। यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या है, ये था, और यहाँ पे क्या था, उसका मोमेंटम क्या हो गया m1 v1, v क्या हो इसमें कम हो गया, अभी v इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस m2 v2, तो इसमें क्या डायरेक्शंस क्या हो सकते हैं, कभी कभी चेंज हो सकते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट टक्कर लगने के बाद में, कैसी टक्कर लगती है आपको शायद पता होगा, दोनों भी ऑब्जेक्ट उधर से आ रहे हैं है ना, सपोज इमेजिन करो आप, है ना, इमेजिन अच्छा कर सकते हैं आप, उधर से ट्रक आ रहा है, इधर से आपकी साइकिल आ रही है, टक्कर मारे बाद क्या होगा, ट्रक पीछे जाएगा, साइकिल पीछे जाएगी है ना, तो क्या होगा, कभी कभी का ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि ट्रक साइकिल को रोकते हुए आगे भी जा सकता है, वो जो ट्रक क्या है पीछे जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द मास। अभी इमेजिन करो कि दोनों को ऑब्जेक्ट का सेम मास है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों भी आ रहे हैं, टक्कर मारे बाद दोनों भी पीछे जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। कंडीशन देखो, सब इमेजिन करो, पहले क्या था, एक का मास ज्यादा एक का मास कम था, है ना, जैसा ट्रक था, एक साइकिल थी, टक्कर मारे, तुम्हारी साइकिल भी आ रही है, तुम्हारा ट्रक आ रहा, मारने के बाद में इधर गया है ना। दूसरे कंडीशन में दोनों भी टक्कर मार के दोनों भी पीछे गए, वेरी गुड, समझ में आता, अपोजिट बोले तो है ना, उसकी तरह क्या है, दोनों भी डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन भी क्या हो गया, रिवर्स। तो कभी कभी क्या होता है, एक खाते का डायरेक्शन रिवर्स होता है, कभी कभी दोनों का भी डायरेक्शन रिवर्स होता है, समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है, एक आधा ऑब्जेक्ट इधर आता है, टक्कर मारता है, टक्कर मारते वो जगह पे ही रुकता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या आता है, भागता है। ऐसा कभी एक्सपीरियंस करके देखा है कि आपने, इधर से आ रहे टक्कर मार रहे हैं, तो इसकी स्पीड ले आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा रुक गया, और इसकी एनर्जी क्या मिली, इसको मिल गई, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा मोरा। जनरली ये केस इसमें होता है, सेकंड केस में, जब कैरम खेलते होगा, कैरम खेलते हुए क्या नहीं, गोटा खेलते हो क्या, अच्छा, तो अच्छा मालूम है आपको मोमेंटम के बारे में है ना, तो कॉइन तो गोटा पता है ना आपको, खेले ना, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या है, ये इनिशियल मोमेंटम क्या है, यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या है, m1 u1, फाइनल मोमेंटम इसका 0 है, फाइनल मोमेंटम क्या है उसका 0। जब आप स्ट्राइक करते हो कॉइन को, तो कॉइन रुका हुआ कॉइन जो है, कभी कभी क्या होता है, स्ट्राइकर जो है, स्ट्राइकर क्या करता है, कॉइन की स्पीड बढ़ाता है। कॉइन से कभी स्ट्राइकर को मार के देखे क्या आपने, कॉइन का मास कम है, तो क्या होता है, स्ट्राइकर थोड़ा सा ही था, लेकिन कॉइन बाउंस पीछे भी आ सकती है ना। कभी कभी क्या होता है, जब तुम कभी कभी मारते में इलास्टिक कोलिजन होता है, देखो जब तुम मारने स्ट्राइकर मारे, तो एग्जैक्ट सेंटर पे, तो तुम्हारा स्ट्राइकर कॉइन की जगह पे ही रुकता है, और कॉइन आगे जाती है, एग्जैक्ट जगह पे बैठता है स्ट्राइकर, तुम्हारा आगे नहीं जाता है, पीछे नहीं जाता है, तो वो क्या होगा, तुम्हारा टाइप ऑफ इलास्टिक कोलिजन है ना। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज रिमेन्स सेम। हियर गिवन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वही बताया फिर से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या बताया तुम्हारा, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज सेम, p1 इक्वल्स टू p2, दोनों मोमेंटम क्या है आपके सेम है। इसका मतलब क्या है तुम्हारा, m1 u1 इक्वल्स टू m2 v1, m1 v1 बोलो, तो एक ही ऑब्जेक्ट का कोलिजन होगा, किसी से टकरा है, तो क्या होगा तुम्हारा m1 u1 प्लस m1 v1 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, तो रिजल्ट मोमेंटम क्या हो गया आपका 0, रिजल्ट मोमेंटम क्या होगा आपका 0, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज रिमेन्स सेम। तो इसका मोमेंटम क्या है, m1 u1 है, इसका मोमेंटम क्या है, m1 v1 है, फाइनल वेलोसिटी मास चेंज हो रहा है क्या उसमें,
नहीं हो रहा है। एक ही ऑब्जेक्ट में मास उसमें रिमेन्स द सेम, जस्ट ओनली गोइंग टू चेंज द वेलोसिटीज, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वहां पे रिजल्ट मोमेंटम कितना हो गया, m1u1 प्लस m1v1 इक्वल्स टू 0, है ना। मोमेंटम क्या हो रहा है तुम्हारा, से मोमेंटम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम इज व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या है, मोमेंटम कोलिजन होने का पहले का मोमेंटम क्या है तुम्हारा, इनिशियल वेलोसिटी m1 इंटू u1, इसका मोमेंटम क्या है m2 इंटू v1, जो मास सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है, जो भी है मास एंड वेलोसिटी दोनों भी क्या है तुम्हारे सेम है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ऑब्जेक्ट वही है तुम्हारा, इनिशियली तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना। तो किसी को आपने समझो मार दिया मोमेंटम से, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का तुम्हारा मोमेंटम स्पीड बदलेगा, है ना। मास तो बाद में क्या है, मास उसका था, स्पीड चेंज हो गई, तो रिजल्टेंट मोमेंटम क्या है तुम्हारा m1u1 प्लस m1v1 इक्वल्स टू 0। यही क्या है तुम्हारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मींस मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज सेम। समझ में आ गया, दैट कंडीशन इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोलिजन फिर से वही बताया, कोलिजन का मतलब क्या, टाइप्स ऑफ कोलिजन देखना है आपने, कितने टाइप्स ऑफ कोलिजन है यहाँ पे, हाँ कितने, दो, कितने टाइप्स ऑफ कोलिजन कितने, दो। कौन से कोलिजन है यहाँ पे, इलास्टिक कोलिजन एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन, है ना। इलास्टिक कोलिजन में क्या है, फर्स्ट केस इज सेम, कौन सी, द मोमेंटम p1 इक्वल्स टू p2, यहां पे भी क्या है तुम्हारा p1 इक्वल्स टू p2, है ना। मोमेंटम इज रिमेन सेम, मोमेंटम दोनों कंडीशन में सेम आएगा ही आएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है हमेशा के लिए कॉन्स्टेंट है, मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज constant, but in second case here if you are observing the kinetic energy 1 upon to mv square equals to 1 upon to m v, यहाँ मैं कहता u करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ v, है ना। ये क्या है, इसमें सेम है, kinetic energy before collision and kinetic energy after collision is a remains same, but here in second case kinetic energy 1 upon to m u1 square is not equal to 1 upon to m v1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन सेम है। यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अलग है। समझ में आ गया। इलास्टिक में क्या है तुम्हारा सेम है, और नॉन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी डिफर है। क्लियर, गुड। हियर देन रिकॉलिंग गन, तो गन क्या हो रही है आपकी, रिकॉल हो रही है ना। तो गन रिकॉल किस तरह से हो रही है, गन यानी क्या है बताया मैंने आपको, ऑब्जेक्ट जब तुम्हारा एक आगे जाता है, अकॉर्डिंग लॉ न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड सेकंड का लॉ क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, F12 इक्वल्स टू F21, है ना, विद द अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स क्या है, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स फॉर दैट पर्पज यू शुड नो अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉज, है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है आपका, द फोर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, m v माइनस यू डिवाइड बाय t, बराबर है ना। ये मास ऑफ वन, यहाँ पे माइनस यम, यहाँ पे v माइनस यू डिवाइड बाय t, है ना। उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट, उल्टा हो गया, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या टी टी कैंसल, तो क्या आ गया तुम्हारा m1v माइनस m1u, यहाँ पे m1v माइनस m1u, है क्या। सर तुम कुछ भी लिखो बना सर, हमको क्या फर्क पड़ रहा है ना, ऐसा है नहीं ना। तो क्या आ रहा है तुम्हारे में, माइनस है, तो m1v माइनस साइन माइनस m1u, देन वी कैन चेंज द साइन हियर, m1v माइनस m1u इक्वल्स टू माइनस m1v माइनस माइनस प्लस m1u। अभी क्या करेंगे अपन, सेम इनिशियल स्पीड वाले एक तरफ कर लेंगे, फाइनल स्पीड वाले एक तरफ। इनिशियल स्पीड वाला कौन है तुम्हारा, यहाँ पे इनिशियल स्पीड वाला देखो ये है यहाँ पर, है ना, बोलिए। हाँ ये वाला, ये भी इनिशियल स्पीड वाला है, दोनों को एक साइड में लाएंगे, चलेगा। आप उसको इधर लाओ या तो उसको उधर लाओ, जैसा आपको लगता है, चलो कोई बात नहीं, आप जैसा बोलते वैसा करेंगे। इसको इधर ला लेंगे एज ए विश, जैसा आपको अच्छा लगा, और ये फाइनल व्यू को क्या कर देंगे अपन, उधर लेके जाएंगे, चलेगा। हाँ
तो देखो, तो यहाँ पे क्या था तुम्हारा -m1u, इधर आए बाद क्या हो जाएगा प्लस का -m1u। यहाँ पे मास तुम्हारा क्या था, अलग था, है ना, मास क्या है तुम्हारा यहाँ पे, चलो अलग कर देंगे अपन। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा m1u, है ना, इक्वल्स टू, अब इसमें क्या है तुम्हारा -m2v, इधर माइनस, इधर क्या हो जाएगा, इधर प्लस है ना, इधर के बाद माइनस होगा, -m1v। तो मैं क्या कर रहा था, इसलिए मैं क्या कर रहा था, माइनस कैंसिल करने के बजाय मैं उसको उधर लेके जा रहा था। अभी क्या कर, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, m1 u1 माइनस m2 u2, बोलो, इक्वल्स टू माइनस साइन कॉमन m2v1 माइनस प्लस m1v2। ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा तुम्हारा कैंसिल। तो ये क्या होगा तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम में क्या है तुम्हारा, ये वेलोसिटी पहले की है, u क्या है बिफोर कोलिजन, u क्या है बिफोर कोलिजन, v क्या है, v मीन्स द सेम वे, दैट इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम, है ना, यहाँ पे बिफोर कोलिजन आ गया, और मोमेंटम क्या आ गया तुम्हारा आफ्टर कोलिजन, दोनों भी क्या हो गया तुम्हारा सेम हो गया। समझ में आ गया कैसा डिराइव किया अपन ने। तो यही क्या है रिकॉलिंग ऑफ गन में होता है। गन में क्या होता है, तुम्हारी बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे आती है, तो यही अपने को अभी देखना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बाद में अभी रिकॉलिंग ऑफ द गन, देखो तो कैसा हो रहा है। देखो अभी तो गन के बारे में अपन लॉस देख लिया अभी आपने, है ना, तो वही लॉ से अपन देखना है कि गन कैसे आगे जाएगी। लेट वी कंसीडर द मास ऑफ द बुलेट इज वेरी स्मॉल, दैट मास विल बी सपोज स्मॉल एम। मास क्या करेंगे, बुलेट का मास क्या करेंगे अपन, स्मॉल एम लेंगे। गन का मास क्या करेंगे अपन, कैपिटल एम लेंगे, अपने समझने के लिए। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल सपोज v एंड वेलोसिटी ऑफ गन सपोज u। आप देखिए, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग, कोलिजन यानी कुछ भी हो सकता, फायरिंग आफ्टर फायरिंग मोमेंटम इज सेम एंड बिफोर फायरिंग आल्सो मोमेंटम इज सेम। यहाँ पे भी कोलिजन हो रहा है, किसमें कोलिजन हो रहा है, तुम्हारे अंदर के स्ट्राइकर्स में और ये बुलेट में। सर बोल रहे सर फायरिंग हो रहा है और कोलिजन हो रहा है, डिफरेंस है, सेम ही है ना। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है, बुलेट आगे क्यों जा रही है, बिकॉज क्या हो रहा है, अंदर से क्या कर रहा हो, स्ट्राइक कर रहा है ना, अंदर से मार रहा है, इसलिए क्या तुम्हारी बुलेट आगे जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या है देखो, अभी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन क्या है, मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट इक्वल टू कितना है आपका, 0 है, बराबर है। अभी देखो मोमेंटम ऑफ द गन बिफोर फायरिंग, फायरिंग के पहले का मोमेंटम का कितना है तुम्हारा, उसका मास या वेलोसिटी u, बराबर है। तो कहां पे आएंगे, वो पीछे आएगी, है ना। यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया, इसको रिकॉर्ड वेलोसिटी का v2 बताया, आप v2 लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे v1 बताया तो v1 लिख सकते हो, v2 लिखेंगे क्या अपन, चलो v2 लिखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्या है v2 और यहाँ पे क्या होगा समझो v1, मजल वेलोसिटी यानी वहां तक जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, बिफोर कोलिजन मास ऑफ गन और मास ऑफ बुलेट क्या है तुम्हारा 0। तो मास ऑफ गन वेलोसिटी क्या है उसकी, माइनस साइड में आ रही है v2 प्लस मास ऑफ गन स्मॉल मास और वेलोसिटी कितना है v1 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, है ना। तो इसको क्या करेंगे अपन फिर m1 mv1 इक्वल्स टू कितना है mv2। ये होगा तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, जितना तुम्हारा बुलेट का मास होगा, गन का जितना मास होगा उतनी बुलेट दूर जाएगी, है ना। जितनी गन तुम्हारी स्ट्रांग होगी, गन जितनी वजनदार होगी उतनी गोली आगे जाएगी। समझ में आ गया, है ना। इज द रिलेशन ऑफ द रिकॉलिंग वेलोसिटी, जितनी स्पीड ले आगे जाएगी और उतनी स्पीड से पीछे आएगी क्या, मोमेंटम विल बी द सेम, है ना। उतनी स्पीड से पीछे आने नहीं आएगी, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। क्योंकि गन का बुलेट का मास क्या है, नियर अबाउट ग्राम में होता है, और इसका मास क्या होता है तुम्हारा किलो में, है ना। तो इसकी स्पीड 1000 टाइम्स क्या होगा तुम्हारा कम होगी। तो बुलेट तुम्हारी 1000 टाइम्स ज्यादा जाती होंगी आगे, तो गन 1000 टाइम्स स्लोली पीछे आएगी, पर आएगी। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि जब जो मिलिट्री में वगैरह जो है, जब फायरिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, खंदे का सपोर्ट लेते हो। जो फायरिंग करते समय क्या करते हैं, खंदे का सपोर्ट लेते हैं, है ना। अच्छा, ढीला नहीं रखते, ढीला को दन का स्ट्राइक मारेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इसको क्या करते, दबा के रखते, दो होल्ड करते, फिर बाद में क्या करते, फायरिंग करते, यहाँ पे उसको ज़्यादा इंजुरी ना हो, इस तरह से, है ना। देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो अभी वार्म एक्सपोजन,
बॉम्ब एक्सप्लोजन, बिफोर बॉम्ब एक्सप्लोजन व्हाट वाज द मोमेंटम, जीरो, है ना। बिफोर एक्सप्लोजन के पहले क्या है, मोमेंटम क्या है तुम्हारा, बॉम्ब का मास m और उसकी वेलोसिटी जीरो है, बॉम्ब को जा रहा है क्या, नहीं। बट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हो रहा है तुम्हारा, आफ्टर एक्सप्लोजन भी तुम्हारा कितना आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कॉन्जर्वेशन मोमेंटम, जीरो ही आना चाहिए। अभी बॉम्ब के कितने फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैगमेंट कितने फ्रैक्शन टुकड़े होते हैं, उस पर डिपेंड करेगा, और हर टुकड़ा जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्प्लिट होगा। सपोज इमेजिन करो कि बॉम्ब के दो ही टुकड़े हो रहे, स्प्लिट हो रहे दो ही, तो क्या हो जाएगा, एक टुकड़ा उतने ही वेलोसिटी इधर आएगा, एक टुकड़ा उतने ही वेलोसिटी से उधर जाएगा, बराबर। सपोज बॉम्ब के चार टुकड़े होते तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा उसका, रिजल्ट मोमेंटम कितना होगा, जीरो। नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ टुकड़े होते होंगे, सब तुम्हारे इधर उधर बिखर जाएंगे, देन आल्सो द मोमेंटम, रिजल्टेंट मोमेंटम विल बी द जीरो। तो भी कितना रिजल्ट, जो हर टुकड़े का जो मास जो है, उसका मास m1 v1 प्लस m1 v2, जो सबकी अपन एडिशन कर रहे हैं, जब भी कितना आएगा, रिजल्टेंट विल बी द जीरो, समझे, है ना। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ फ्रैक्शंस हो गए इसके, बॉम्ब के जितने तुम्हारे फ्रैक्शंस हो गए, उसका रिजल्टेंट मोमेंटम देखोगे आप कुछ पता है शायद, फोर्स, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, कैसा निकालते पता है, वी आर फाइंडिंग द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड वी आर डूइंग द सबट्रैक्शन, इन द सेम डायरेक्शन वी आर एडिंग द फोर्स। तो सेम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वेक्टर सम, यहाँ पे वेक्टर आएगा, इसका डायरेक्शन इधर है तो क्या, ये दोनों नलीफाई हो जाएंगे, इसका दोनों का इधर है तो ये दोनों भी नलीफाई हो जाएंगे, तो बॉम्ब तुम्हारा एक्सप्लोज जैसा हो रहा है उस तरह से तुम्हारा क्या हो, स्प्लिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा तुम्हारा, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम विल बी रिमेन्स सेम, इट विल बी द जीरो ओनली। देखिए, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखना है आपको, न्यूमेरिकल्स ये वही फॉर्मूला है, कौन सा, मोमेंटम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द कोलिजन एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ विल बी द ऑब्जेक्ट विल बी द सेम, कौन सा, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये फॉर्मूला अपने को लेना है ना। ये फॉर्मूला क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये फॉर्मूला। फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए क्या है तुम्हारा, सीधा सीधा mu प्लस mv इक्वल्स टू जीरो, है ना, ये फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए जो है ना। जो पर आप क्या करो, ये फॉर्मूले पे फोकस करो, है ना। और डायरेक्शन कैसा लोगे वेलोसिटी के, सपोज द ऑब्जेक्ट्स, द वेलोसिटी सपोज इधर ऐसा है, वेलोसिटी ये साइड में जाती है तो पॉजिटिव लेना है, और ऑब्जेक्ट ये साइड में जाता है तो वेलोसिटी का लेना है आपको नेगेटिव लेना है, ओके। मास नेवर बी द जीरो, मास नेगेटिव कभी आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। जस्ट ओनली वेलोसिटी वी हैव टू टेक द डायरेक्शन, वेलोसिटी के लिए क्या डायरेक्शन आपको लेना है। then now we'll discuss about the first with the help of the graph। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, the velocity time graph of particle of mass is given 50 ग्राम, मास कितना दिया उसे, डाटा लिख लो, चलो क्या दिया है आपको, मास दिया 50 ग्राम, ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है क्या आपका, इट इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट्स, वी हैव टू कन्वर्ट इन अ स्टैंडर्ड यूनिट। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू डिवाइड बाय 1000, यू हैव टू डिवाइड बाय 1000, 50 डिवाइड बाय इट विल बी ना kg नाउ, तो क्या आ गया तुम्हारा, इट मास विल बी इन kg। मूविंग विद द फिक्स्ड डायरेक्शंस एज शोन इन फिगर, फाइंड द फोर्स ऑफ द पार्टिकल, क्या करना है आपको, फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के क्या लगेगा आपको, फोर्स निकालने के लगेगा आपको मास एंड एक्सेलरेशन। मास तो दिया है आपको, एक्सेलरेशन दिया है क्या, पर ग्राफ दिया है, तो ग्राफ से आप एक्सेलरेशन निकालना पता है आपको, है ना। पिछले क्लास में पढ़े अपन हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, वी और टी ग्राफ में बाय द हेल्प ऑफ द स्लोप, है ना। तो स्लोप क्या है ग्राफ का, स्लोप यानी क्या है तुम्हारा, एक्सेलरेशन, दैट इज टू, देखो अभी क्या है तुम्हारा y2 और y1 कितना है तुम्हारा, जीरो है ना, x2 और x1 कितना है, जीरो है, तो y2 माइनस y1 कितना है, 2 माइनस जीरो डिवाइडिंग बाय 4 माइनस जीरो, दैट इज कितना है, 2/4, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन आ गया, कितना आ गया 0.5। देन व्हाट इज द फोर्स, F इक्वल्स टू मास कितना दिया, 50 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, एक जीरो इसके साथ गया, है ना, कितना आ गया तुम्हारा 5 इंटू 5 2.5, 0. है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 2.5 डिवाइड बाय 100, करेक्ट। क्या आ गया, इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। आपको फिर डिवाइड बाय 100 कर तो शिफ्ट क्या करना पड़ेगा तुम्हारे को,
उधर साइड में करो, या तो फिर सिंपली आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, 2.5 टू 10⁻² न्यूटन, ऐसा भी लिख सकते हो आप। नीचे का पावर क्या है, 100 कितना है, 10 का पावर 2, ऊपर का बाद क्या होगा पावर हमारा -2, 2.5 10⁻² न्यूटन। ये क्या होगा आपका फोर्स। समझ में आ गया क्या? गुड। द नेक्स्ट वन, द टू स्टोन्स हैविंग द मासेस इन द रेशियोज ऑफ 3:4। दो स्टोन दिया है आपको, उसके मास दिया है, मास ऑफ m1 एंड m2 कितना दिया है आपका, रेशियो दिया है 3:4, है ना, कुछ भी हो सकता, 3x और 4x कुछ भी हो सकता मास, क्योंकि दोनों के रेशियो दिया है। और फ्रॉम सॉरी रेशियो 3:4, फ्रॉम द हाइट ऑफ द रेशियोज इज 4:9। ऊपर से क्या करें, ड्रॉप कर रहे हैं अपन, है ना, फॉल्स फ्रॉम द हाइट इन द रेशियोज ऑफ 4:9। तो यहाँ पे क्या करें अपन, यहाँ पे से उसके हाइट जो है 4:9 से क्या करें, उसे अपन ड्रॉप कर रहे हैं। देयर इज लीनियर मोमेंटम इन द रीचिंग द ग्राउंड, तो वो काइंड पे क्या करना है आपको, लीनियर मोमेंटम निकालना है। सवाल समझ में आया क्या? तो लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे क्या करने का, P क्या है तुम्हारा, मास इंटू वेलोसिटी, बराबर है, P क्या है तुम्हारा, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ग्राउंड जो ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा, पहले क्या छोड़ रहा है, द रेशियो इज 4:9। पहले को क्या कर रहा है तुम्हारा, उसका जो छोड़ रहा है तुम्हारा क्या डिस्टेंस 4 से छोड़ रहा है, और बाकी दूसरे वाले को छोड़ रहा है कितना डिस्टेंस से, 9 से। डिस्टेंस 9 से छोड़ रहा है ना, ऊपर से छोड़ रहा है, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी, स्पीड ज्यादा होगी, है ना। तो स्पीड आपको निकालना है, इनिशियल स्पीड छोड़ रहा है ना, इनिशियल स्पीड क्या है उसकी 0, है ना। देन विद द हेल्प ऑफ दैट रिलेशन v इक्वल्स टू u प्लस, अदरवाइज दैट फॉर्मूला वी कैन यूज, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो फर्स्ट केस, इन केस 1 क्या हो रहा है तुम्हारा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बराबर, v स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन कौन सा तुम्हारा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे जा रहे हैं, है ना, तो g लेंगे, तो कितना लेंगे, 10 लेंगे अपन, अप्रोक्सीमेटली 9.8 लो या तो 10 लो। यस कितना दिया है, रेशियो कितना दिया है इसका आपको, 4, है ना। तो ये आ गई तुम्हारी फर्स्ट केस। तो v स्क्वायर, हाँ बोलिए, एक्सेलरेशन g लिया मैंने 10, a इक्वल टू कितना है 10 लिया, है ना, माइनस लेना, माइनस लो आप, माइनस एक्सेलरेशन क्या तुम्हारा, a इक्वल टू g, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है ना, u इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप कर रहे हैं अपन, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0, फाइनल वेलोसिटी नीचे स्पीड ले आएगा, है ना। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2a कितना है तुम्हारा 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तुम्हारा 4, तो ये क्या तुम्हारा 24 जा 80, है ना। तो v कितना आ गया √80, ये अपन निकाल के रख दिए। सेकंड केस में क्या होगा, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस में सेम फॉर्मूला, इनिशियल 0 है आपका, v2 निकालेंगे, चलो v2 स्क्वायर इक्वल टू 2, a कितना है आपका सेम ग्रेविटी, एंड डिस्प्लेसमेंट हाउ मच 9, देन v2 इक्वल्स टू √20, 180 लिखेंगे, वेरी गुड, 180। v मिल गया, मास पता है, निकालना क्या है फिर अपने को, मोमेंटम। तो मास कितना है उसका 3x इंटू v1 कितना है रूट डिवाइड बाय 80, y करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है रेशियो दिया है ना, यहाँ पे y कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे अपन y, और यहाँ पे कितना है आपका 4x इंटू रूट 180 y, तो रूट में कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 3, √80 यानी क्या करेंगे इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 लिख सकते हैं। 80 को क्या लिखोगे 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 divided by 4 into, again here you can write 9 into कितना 20, बराबर। तो फिर कितना हो गया देखो 3, इसका √4 यानी कितना हो गया 2, और √20, 4 3 और √20 क्या हो गया तुम्हारा कैंसल, ये भी 3 क्या हो गया तुम्हारा कैंसल, तो कितना बचा, कितना तुम्हारा 1/2 यानी 0.5, तो क्या आ गया तुम्हारा रेशियो निकाले ना फिर अपन ने, द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या P1/P2 निकाले,
P1 कितना है, M1 इंटू V1, M2 इंटू V2, तो कितना है, M1 कितना है 3x, V1 कितना है √80y, 4x इंटू √180y, बराबर है। तो फिर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा तुम्हारा, ये एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, 3 और 80 को लिखा मैंने 4 टू 4, समझे, सेम 4 9 इंटू, then that will be 20 20 cancel, 3 3 cancel, 2/4, that is 1/2, 1:2 लिख दो। तो रेशियो कितना आएगा फिर P1/P2 का, P1:P2 is 1:2, रेशियो क्या आएगा आपका 1:2, समझ में, क्लियर नाउ, गुड। और द नेक्स्ट वन, how much momentum will be the dumbbell of mass of 10 किलोग्राम, डम्बेल है ना, उसका मास कितना दिया है आपको 10 किलोग्राम दिया है, मास कितना दिया है उसका, ट्रांसफर्स टू द फ्लोर्स एंड इट्स फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो क्या हो रहा है, देखो मोमेंटम, डम्बेल्स थी आपके हाथ से गिर गई, तो उसकी हाइट कितनी थी 80 सेंटीमीटर, तो नीचे गिरने के बाद में ऐसे हल्की गिर गई, क्या फर्शी तोड़ देंगे ना, तो उसका वो मोमेंटम निकालना है आपको, है ना। जब स्पीड बढ़ते बढ़ते जाएगी, हाइट क्या जाए उसको, फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या है उसकी 80 सेंटीमीटर से आपका डम्बेल नीचे गिर रहा है। इनिशियल स्पीड क्या है, मोमेंट डम्बेल की 0 है, हाथ से छूट गई, फेंक रहे नहीं आप, गिर गई है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 0, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, V क्वेश्चन मार्क। टेक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी द, और ये कितना लेना है आपको 10 लेना है आपको कन्वर्ट, ग्रेविटी कितना होती है तुम्हारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपने को दिया है ना। तो क्या करना है आपको, हाउ मच मोमेंटम ऑफ डम्बेल निकालना है, मोमेंटम ऑफ डम्बेल निकालना है, क्या करना है आपको, मास इनटू वेलोसिटी निकालना है, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। अंडरस्टूड क्वेश्चन, ओके। व्हाट दे गिवन टू अस, मास दिया है ना, और इनिशियल हाइट दिया है, हाइट क्या दिया 80 सेंटीमीटर, तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हाइट का, मीटर, देन यू हैव टू कन्वर्ट हियर इन 80 डिवाइड बाय 100 मीटर, सही है। अभी तो आपका आंसर आ ही गया इसका मतलब, है ना। तो आपको निकालना था V, थर्ड इक्वेशन क्या है आपका, V² इक्वल टू कितना U² प्लस 2AS। तो अब इनिशियल क्या था, डंबल आपके हाथ से छूट गई, फेंके क्या आपने, छूट गई, इसका मतलब U क्या था आपका 0 था, V² निकालना है, 2 एक्सेलेरेशन कितना लेना है आपको 10 लेना है, और हाइट कितना है आपकी 80/100, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल कर देता हूं मैं, तो कितना आ गया V, कितना आ गया 4, प्लस माइनस 4 पर अपन प्लस ही लेने का है, एक्चुअली आ रहा है क्या -4, बिकॉज डायरेक्शन इज अ डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, प्लस या माइनस, तो V² क्या है +4 भी आएगा -4 भी आएगा, डायरेक्शन माइनस आएगा क्योंकि क्या है ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है ना, पर मैग्नीट्यूड ले लो आप 4 मीटर पर सेकंड, प्लस और माइनस आ रहा है ना, तो अपन ले रहे +4 या -4 लो। मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है मोमेंटम के लिए, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एक्चुअली मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम क्या है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी, मास कितना है उसका 10, मोमेंटम कितना है यहाँ पर, वेलोसिटी 4, तो कितना आएगा 40, यूनिट क्या आएगा किलोग्राम मीटर पर, ये होगा आपका मोमेंटम, समझ में आया क्या, क्लियर। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट में देखिए, वॉर्म ऑफ मास इज गिवन 9 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट, मास का क्या है 9 किलोग्राम वेट दिया, पर इनिशियली क्या दिया रेस्ट में दिया, तो मोमेंटम क्या होगा 0, है ना, 9 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 0 था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था mv कितना हो गया 0 हो गया, इक्वल्स टू एक्सप्रेस इन 2 पीसेस ऑफ मासेस, 2 उसके पीस हो गए, एक पीस 3 का, एक पीस 6 का, दोनों का मोमेंटम में, रिजल्ट मोमेंटम में कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, है ना। तो एक मास क्या है 3 किलोग्राम है, इसकी वेलोसिटी पता नहीं है अपने को, और दूसरे का मास क्या है 6 है, सॉरी 6 है, इसकी वेलोसिटी भी क्या है पता नहीं, है ना, दिया शायद तो देखेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 किलोग्राम मास इज 216 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी दिया उसने, काइनेटिक एनर्जी किसकी दिया उसने, जिसका मास 3 किलोग्राम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दिया, कितनी दिया उसने 216 जूल। देन द वेलोसिटी ऑफ द 6 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको, क्वेश्चन समझ में आया क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसने दिया है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
1/m v स्क्वायर, यानी कितना है 216। 1/2 मास कितना है 3, v स्क्वायर निकालना है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 3 2 जा, तो कितना है v स्क्वायर कितना आ गया 144। v कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। v कितना आ गया आपका 12 मीटर पर सेकंड फर्स्ट केस में आ गया। कौन से केस में? फर्स्ट केस में। तो यहाँ पे क्या करना है आपको 3 इंटू 12 प्लस इसका मास क्या है 6 है, उसकी वेलोसिटी क्या है पता नहीं, पर दोनों की एडिशन पता है आपको, दोनों की एडिशन कितनी है 0 है। तो कितना हो गया 12 3 जा 36 प्लस 6v दैट इज -36 इक्वल्स टू 6v, देन v इक्वल्स टू -36 डिवाइडिंग बाय 6। तो v कितना आ गया -6 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी माइनस होगी, समझे? उसकी वेलोसिटी क्या होगी आपकी, बोले तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में। 2 टुकड़े हो रहे हैं ना, 3 टुकड़ों का, 3 का सपोज राइट साइड जा रहा है तो 6 का लेफ्ट साइड जाएगा, 6 का लेफ्ट साइड गया तो 3 वाला दोनों का डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा अपोजिट। गॉट इट? नेक्स्ट वन, okay, very few questions are there. A bullet of mass is given 10 ग्राम। बुलेट का मास कितना दिया आपको अभी 10 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, which just we are going to convert here. The velocity of the bullet is given, velocity bullet की दिया है, velocity of bullet 500 मीटर पर सेकंड can be stopped by using a bullet proof vest। तो क्या है बुलेट मारने के बाद में रुक जा रही है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0 है ना। तो क्या है इनिशियल वेलोसिटी दिया है u दिया है, और बाद में क्या है तुम्हारे जैकेट को लगने के बाद में रुक जा रही है, तो यहाँ पे क्या है फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकंड। मेड ऑफ ट्यूटर्स विच कैन बी अप्लाई द रेजिस्टिविटी ऑफ द फोर्स। फोर्स कितना है आपको, अपोजिंग फोर्स कितना है तुम्हारा -250 न्यूटन, वो अपोजिंग फोर्स है। वो फोर्स इतना रहने के क्या हो रही तुम्हारी बुलेट तुम्हारी जगह पे रुक गई, अंदर नहीं गई, बुलेट क्या आई, उसका अपोजिंग फोर्स क्या था तुम्हारा 250 था। इसका मतलब तुम्हारे बुलेट ने भी उतना ही फोर्स अप्लाई किया, दोनों फोर्स सेम रहने से क्या होगा तुम्हारी उसकी स्पीड रुक गई है। इफ द वेट ऑफ द मेड बाय द जॉइनिंग द लेयर्स ऑफ द केलविट्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर विड्थ, और उसका जो लेयर जो है कितना है उसका 10 सेंटीमीटर की विड्थ दिया है उसकी, है ना। ये बाद में डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस दिया आपका। फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ लेयर्स रिक्वायर्ड टू द वेस्ट, तो आपको कितने लेयर्स लगेंगे जहां पे आपकी बुलेट क्या हो जाएगी तुम्हारी रुक जाएगी। यानी इनडायरेक्टली क्या करना है आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना कवर कर रहा है ना। यहाँ पे आदमी खड़ा है ना बुलेट पहन के, तो क्या है इसमें एक नंबर ऑफ लेयर से बुलेट आ रही है, ये आदमी को लग रही नहीं, तो बुलेट क्या हो तुम्हारे यहाँ पे रुक जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैवल कर रही है आगे। तो कितने लेयर का बुलेट होगा कि जब आदमी को क्या कोई इंजरी नहीं होगी, वो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो अभी पहले क्या था अपना, पहला मोमेंटम निकालो। पहला मोमेंटम कितना है मास और वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम कितना आ गया तुम्हारा मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 500, तो कितना आ गया 5 आ गया। मोमेंटम क्या है इतना, इनिशियल मोमेंटम 5, फाइनल मोमेंटम कितना है 0। फाइनल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम p1 लिखता मैं इसको, फाइनल इनिशियल लिखता है इसको, फाइनल कितना हो गया आपका 0, है ना। तो कुछ समय लग रहा है यहां से यहां तक जाने के लिए। लेट वी कंसिडर टाइम विद द टी, टाइम क्या लग रहा है सपोज टी लग रहा है ना, वी कंसिडर टाइम विद द टी टाइम। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा P2 माइनस P1 डिवाइड बाय टी, बराबर है कि नहीं। फोर्स क्या होता है चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स कितना दिया है यहाँ पे आपको -250, -250 इक्वल्स टू फाइनल क्या है आपका 0 है, इनिशियल क्या 5 है, टाइम क्या है तुम्हारा t। तो क्या हो गया तुम्हारा 0 के साथ माइनस कैंसिल, 5 1 जा, बोलो टाइम कितना लग रहा है आपको 50 सेकंड लग रहा है। 50 सेकंड क्या कर रही है तुम्हारी बुलेट, क्या कर रही है अंदर इंसर्ट हो रही है। टाइम निकाल दिया, टाइम निकल गया, तो आप क्या निकालना है फिर डिस्टेंस निकालना है आपको, है ना। तो डिस्टेंस निकालने क्या करोगे आप v इक्वल्स टू u प्लस
80। यहाँ पे एक्सेलरेशन पता है क्या आपको? नहीं। तो डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला नहीं करेंगे, आप ये करेंगे यस इक्वल टू कितना है, ut प्लस 1/2a। ये भी नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये भी नहीं पता है एक्सेलरेशन, फाइनल फार्मूला v स्क्वायर कुछ ये लगेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन नहीं बताया ना, चलो कोई बात नहीं। तो टाइम बताया ना अपने को, एक्सेलरेशन निकाल देंगे अपन। टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है उसने, 500 दिया है। इसे करके देखेंगे टाइम। एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू, तो v कितना है आपका, v निकाल, फाइनल v जाके रुक गया है। इनिशियल क्या है 500 माइनस a, t कितना दिया 50 ना, 50। तो माइनस 500 इक्वल टू a इंटू 50, माइनस माइनस कैंसिल, और a कितना आ गया फिर आपका 10 आया क्या, एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी एक्सेलरेशन मिल गया आपको, आपके पास टाइम मालूम है, फोर्स मालूम है, तो डिस्टेंस निकालना है। अभी इसमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो आप, सेकंड कर सकते हैं या तो थर्ड भी कर सकते हैं, सेकंड करो या थर्ड करो एज यू विश। सेकंड फॉर्मूला करेंगे, कौन सा करेंगे, थर्ड सेकंड, चलो दोनों भी कर लेंगे। तो क्या है, एस इक्वल टू कितना है निकालना है, एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल 500 है, टाइम कितना है 50, मारने के बाद में स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा तुम्हारा माइनस होगा, -10। और टी स्क्वायर कितना है आपका 50 इंटू 50 बराबर, तो कितना आ गया तुम्हारा देखो, 2 2 5 5 25, 30 माइनस कितना 10 इंटू 2 5 0 0, 2 5 3 0 माइनस 2 5 3 0, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा 0। इसका मतलब इमीडिएटली आपको क्या है, बुलेट तुम्हारी स्टॉप हो जा रही है ना। तो इसके तुम्हारा क्या, बुलेट तुम्हारी क्या है, तुम्हारी इजीली तुम्हारी स्टॉप हो जा रही है। समझ में आ गया। हाँ, नेक्स्ट वाला देखिए, a ball of mass of 100 grams and another ball of 120 ग्राम। एक बॉल का मास दिया है आपको 100 और दूसरे का मास दिया है 120, दैट इज m1 और m2। मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी एक प्लस लेना है, दूसरी की वेलोसिटी क्या लेना है आपको माइनस। विद द स्पीड ऑफ 6, इसका सपोज 6 मीटर पर सेकंड और इसका लेंगे 5 मीटर पर second respectively. If they strikes to each others after colliding, what will be the velocities of combined mass after the collides? तो उसकी velocity निकालना है when they are collide, after collision के बाद में उसकी velocity आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, बॉल तुम्हारे यहाँ पे, इसका मोमेंटम कितना है 100 इंटू 6 है ना, इसका कितना है -120 इंटू 5, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू, अभी दोनों मिल रहे एक दूसरे को, तो मास कितना होगा दोनों का एडिशन, तो 100 प्लस 120 और दोनों की वेलोसिटी क्या है पता नहीं, आपको निकालना है ना। दोनों मिलने के बाद में आगे या पीछे जा रहे हैं, तो कितना हो गया तुम्हारा ये 600 माइनस 12 5 60, 600 बराबर है। तो मास कितना हो गया उसका 220 क्या, तो 0 इक्वल टू 220, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी आ गया आपकी 0। उसका मतलब इलास्टिक पोजीशन, दोनों भी लगने के बाद में क्या स्पीड बढ़ रही है क्या, कहीं ऑब्जेक्ट की स्पीड आ रही है क्या नहीं, तो क्या है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास, तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी 0 मीटर पर सेकंड, है ना, समझे। नेक्स्ट वन एक कार का है, मास के बाद में एक कार, two toys of car A and B are moving towards each other on a horizontal surface. The car A of mass is given 60 gram and moves towards the right with the speed of 60 centimeter per second. तो ये राइट साइड जा रही है, इसकी स्पीड क्या है आपको 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। द कार B has mass is given 100 ग्राम, खिलौने या टॉय कार है, नहीं तो बोलेंगे सर कार का मास टन में होता है ना, तो टॉय कार मेंशन क्या है ना 100 grams and moves towards the left side of the speed is given 20 सेंटीमीटर, इधर आ रही है ये, इसकी स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड।
सेंटीमीटर पर second. The two cars collides and to get the strikes to each others, write what the velocities will be the move after the collision. तो कौन से आफ्टर कोलिजन उनकी दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, है ना. फॉर्मूला सेम, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन विल बी द सेम रहता है. तो क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m2v1 प्लस m1v1 और m2v2. ये फॉर्मूला है अपना. तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, अब इस दो सब सीजीएस में रख सकते हैं आप, चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको. If all the mass is also given CGS, velocity also in CGS, then our answer will be also in a CGS. Then 60 multiplied by 60 is na 60 plus 100 multiplied by minus 20, opposite side. Direction is a opposite है. तो दोनों का मास कितना है तुम्हारा, m1 प्लस m2 और v निकालना है आपको, बराबर है. The two cars collide, strikes each others, and what is the velocity will they move after the collision, है ना. collision के बाद में कैसे मूव हो गए. तो कितना होगा तुम्हारा है 36 माइनस 2000 इक्वल्स 1000, सॉरी. मास कितना है 60 प्लस 100 और ये v, करेक्ट. तो कितना आ गया यहाँ पे 116 और इक्वल्स टू 160 v. तो कितना हो गया तुम्हारा v, कितना आ गया 10 मीटर पर. दे आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, इसका मतलब कौन सी जा रही है, ये कार तुम्हारी क्या हो गई तुम्हारी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कार ये डायरेक्शन में जा रहे हैं आप जा रहे कौन से कोलिजन के बाद में, ये कार तुम्हारी पीछे जा रही है, ये कार तुम्हारी आगे आ रही है. नाउ बाय दिस वे व्हाट वी लर्न टुडे अबाउट, जस्ट वी डिस्कस अबाउट टुडे अबाउट टाइप ऑफ कोलिजन्स, है ना. कोलिजन देखे आज, कोलिजन में क्या क्या देखे अपन ने, इलास्टिक कोलिजन, नॉन इलास्टिक कोलिजन्स एंड न्यूमेरिकल्स. ओनली द वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2u2. दैट इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है आपका, सेम है. यही फॉर्मूला देखे अपन ने. और क्या था इसमें देखिए, होमवर्क के लिए आपको रीड करना है टॉपिक. यू हैव टू रीड द टॉपिक्स. Why this way we end up the today's sessions. If anyone having a doubt, you can ask me any time without hesitations. अब कोई डाउट है तो आपको मुझे कभी भी पूछना है. Shall we wind up today's session then? Okay, thank you.